Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manpreet Singh and you are watching Physics World. So in today's lecture we will be talking about vectors. Yes, we are doing now numericals on the topic of vectors. Yes, so in the community section I have posted the poll and for vectors and projectile motion there was 40%. Yes, so I think we have to upload this, so that's why. But don't worry, I will make video on the other chapters also, like thermodynamics and trigonometric functions also. I will make video on that, but for now, vectors. Yes, so the first question on vectors I would like to put on to the board is that is a AI triple E question, by the way. So that is, if the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference difference of these two vectors, then the angle between then the angle between angle between these vectors is. So this is a AIPMT question. Yes, AIPMT में आया था, नीट 2016 में भी आया हुआ है, AIPMT 1991 एंड नीट 2016 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, और इसका आप रिज़ल्ट भी याद रख लीजिएगा कि ऐसे जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो तब रिज़ल्ट क्या आता है. ठीक है, सो बहुत ही ईजी है, देखते हैं इसको. हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, लेट्स से द टू वेक्टर्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. So we are given that the magnitude of the sum of two vectors, that is the magnitude of the sum, magnitude means modulus, sum means plus, of two vectors is equal to the magnitude of difference of these two vectors. Yes, magnitude of difference, negative difference of these two vectors, then the angle between these vectors is, तो इनमें कोई ना कोई थीटा एंगल होगा, we have to find that थीटा. ठीक है, we are given this condition. चलो चलो फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे. सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, बहुत ही इजी है, बस आपको पता होना चाहिए वेक्टर एडिशन में कौन सा फॉर्मूला लगता है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल. यस, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है. सो लिखते हैं हम यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मॉडुलस इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉडुलस. यस, सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन का क्या फॉर्मूला होता है, यू ऑल नो दैट. यस, सबसे पहले कैसे इसमें क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं. ठीक है, क्यों करेंगे, ताकि वो रूट में जो आ रही होगी चीज़ें वो हट जाएंगी. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. तो इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा. ठीक है, सो यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये ए स्क्वायर से ये बी स्क्वायर यहाँ पर कट जाएगा. सो ये आपका ऐसा चीज़ हो जाएगी. अब क्या होगा, ये माइनस का यहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा. सो 4ab 2 + 2 4 4ab कॉस थीटा is equal to 0. Yes, 4 is a constant, a and b are non-zero vectors, so this means these terms can't be 0, but cos theta can be 0. Cos theta can be 0 at what angle, at angle 90 degree, or you can say pi by 2. Yes, you can also say this in radians if you know that.
Yes, so theta equals to 90 degree. This means if any two vectors are 90 degree with each other, if any two vectors like this is 90 degree with each other, this is vector A, this is vector B. So these two vectors are 90 degree with each other, this is the theta. So this means that the sum of these vectors and the subtraction of these vectors are the same in terms of what? In terms of magnitude, not direction. Direction is different, but magnitude wise इन दोनों का सम और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट. यस, ये सेकंड क्वेश्चन और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये आपके स्कूल एग्जाम्स में डेफिनेटली आ सकता है. मेरे स्कूल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था. सो द क्वेश्चन इज there are two vectors inclined at some angle theta. Yes, there are two vectors inclined in some vector theta such that their magnitudes is equal to the magnitude of the resultant. Yes, find theta. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है. तो इसका भी आपको रिजल्ट याद रख लेना है कि एमसीक्यू में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है, तो रिजल्ट आप याद रख लीजिए, ठीक है. सो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है. पिछले वाले का आई होप आपने रिजल्ट नोट कर लिया होगा कि जब दो वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड और उनके सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है. तो वो भी आपको याद रखना है एंड इसका भी आपको रिजल्ट याद रखना है. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक नीट एंड जी. सो दे आर टू वेक्टर्स. लेट्स से फिर से वेक्टर पी और वेक्टर क्यू लेट कर लेते हैं इस बार, ठीक है. वेक्टर पी और वेक्टर क्यू लेट कर लेते हैं, ठीक. अब ये किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ठीक है. एंड हमें क्या दे रखा है? हमें ये दे रखा है कि देयर मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर पी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. लेट्स से रिजल्टेंट इज आर. सो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो दिस कंडीशन वी आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द थीटा. यस, वी हैव टू फाइंड द थीटा. सो हाउ कैन वी फाइंड इट? हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? देखो, हम यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वहीं से रिजल्टेंट आएगा. सो हमें वही वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो रिजल्टेंट का हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? सो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2p/q cos थीटा, ठीक है. यही होता है, ठीक है. ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट. कहाँ से आए ये ट्रायंगल लॉ से भी आ सकता है, पैरेललोग्राम लॉ से भी, कहीं से भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं. सो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल एग्जाम में आ सकती है. मैं डेरिवेशन नहीं करवा रहा, आपको अपने आप देख लूँगा. मैं सिर्फ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है. एक क्वेश्चन सीरीज़ है, एक डेरिवेशन सीरीज़ भी हमारी पैरेलल पे चल रही है. तो कभी कभी मैं कोई ना कोई डेरिवेशन वहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल्स, ठीक है. सो यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए. सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p/q cos थीटा, ठीक है. अब देखो, अब ये क्या है? ये सब मैग्नीट्यूड है, ठीक है. ये सब क्या मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है. तो अब आप क्या करो, आप किसी एक टर्म को, मतलब सिर्फ एक टर्म को रखो यहाँ पे, बाकी सबको उसके इक्वल दिखा दो, ठीक है. मतलब या तो सिर्फ p रखो यहाँ पे, या सिर्फ q रखो, या सिर्फ r रखो. तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जो मर्ज़ी रखना है वो रख सकते हैं. मैं r रख लेता हूँ, ठीक है. आप कुछ भी रख सकते हैं, p भी रख सकते हैं, q भी रख सकते हैं. बस करना क्या है, इसको सिंगल वेरिएबल में ले रहा, क्योंकि ये सब हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक है. सो मैंने इसको आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दिया. यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह भी मैंने आर स्क्वायर डाल दिया, प्लस क्यू स्क्वायर की जगह भी मैंने आर स्क्वायर डाल दिया. और ये 2
ये आर, यहाँ भी आर, और ये कॉस थीटा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, क्यों करें? ताकि हमारी ऑब्वियसली कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, एक वेरिएबल की एक इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सो आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वेयर प्लस 2r स्क्वेयर कॉस थीटा। ठीक है, इस वाले को यहाँ ले आते हैं। चलो यार, चलो पहले कॉमन ले लेते हैं, जो आपको करना है। वैसे तो कहीं से भी आंसर आ जाएगा, पहले कॉमन ले लेते हैं। 2r स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अब क्या होगा, यहाँ 2 नीचे ले आइए, 1/2, ये 1 यहाँ आ जाएगा, माइनस का 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1/2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, दीज वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, कब किसकी क्या वैल्यू होती है। सो वैल्यू टेबल होता है एक, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, दोज हु हैवंट टेक मैथमेटिक्स, यू हैव टू डू 1 चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स थॉरली। तो कौन सा है, क्लास 11th का 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ फॉर्मूले और ये जो वैल्यू टेबल है इसको ध्यान में रखना। सो कॉस थीटा -1/2, सो दिस मीन्स थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ठीक, दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। और दिस आंसर यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो। ठीक है, कि जब वेक्टर्स और उनके मैग्नीट्यूड का, सॉरी, जब वेक्टर्स और रिजल्टेंट सबका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जब सबका मैग्नीट्यूड बराबर होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका जो थीटा होता है वो 120 डिग्री आ जाता है। ठीक है, थीटा क्या आ जाता है, 120 डिग्री आ जाता है। आई होप सारी चीज़ें विजिबल हैं। ठीक है, सारी चीज़ें विजिबल हैं और ये 120 डिग्री है। इसको आप π/3 भी लिख सकते हैं ना, π/3 नहीं, π/3 तो नहीं, π/3 60 के लिए होता है और 2π/3। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 2π/3 ये भी लिख सकते हैं आप रेडियंस में। अगर ऑप्शंस रेडियस में, सॉरी ऑप्शंस अगर रेडियंस में दे रखे होंगे तो थीटा आप 2π/3 भी ले सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरा सॉल्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूँ ये मोर ओवर कॉम्पिटिटिव लेवल में ज़्यादा आता है। ठीक है, स्कूल एग्ज़ाम्स में मैंने अभी तक इसको देखा नहीं है, आ सकता है बट इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव में खासकर जेई मेंस में पक्का आ सकता है। ठीक है, जेई मेंस में तो पक्का आ सकता है, नीट में भी बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है, इफ़ द सम ऑफ two unit vectors is a unit vector, then what is the magnitude of the difference of these two unit vectors, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें आपको सोचना है। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है, ज़्यादा दिमाग में लगाना है। सो इफ़ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, दो यूनिट वेक्टर्स हैं। अब यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी एंड डायरेक्शन इज सेम एज द पेरेंट वेक्टर। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर दो दे रखे हैं जिनका सम एक नया यूनिट वेक्टर आ जाता है। मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है n1 कैप, ठीक है, जस्ट एज्यूमिंग, और एक है n2 कैप। ठीक है, n2 हैट भी बोलते हैं, n1 हैट भी बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है। सो n1 हैट n2 हैट दो वेक्टर्स है और दो यूनिट वेक्टर्स है बेसिकली। ठीक है, कैप का मतलब जब भी लग जाए तो यूनिट वेक्टर। ठीक, और इनका जो सम है, इनका जो सम है वो हमें क्या देता है, इनका सम हमें एक नया यूनिट वेक्टर देता है। ठीक है, उसको हम n से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, 1 2 का सब्सक्रिप्ट नहीं लगाएंगे हम, सिर्फ n। सो n वेक्टर या n कैप। ठीक है, सो ये हमें देता है। ठीक है, n1 कैप प्लस n2 कैप इक्वल्स टू n कैप, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है कि दो यूनिट वेक्टर्स का सम एक नया यूनिट वेक्टर लेके आता है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है कि हमें ये पूछा है कि n1 कैप माइनस n2 कैप
इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैंने ऐसा साइन बना दिया। तो ये हम बताना है, ये हमें बोला नहीं है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए वन मत बोलना, ठीक है। कई बच्चे इसको वन बोल देते हैं कि सम यूनिट वेक्टर है तो शायद सब्ट्रैक्शन भी एक यूनिट वेक्टर होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ना हो, बोला नहीं है उसे। इसमें बोला है कि दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर देता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको हमें करना है, ठीक। सो हम क्या करते हैं, हम इस वाले को उठाते हैं, इस पर हम अपना क्या फॉर्मूला लगाएंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का सम इज वेक्टर एडिशन रिजल्टेंट वही वाला फॉर्मूला लगता है। सो चलो उसको लगाते हैं। तो कैसे करेंगे हम करेंगे एन कैप के मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। मैं पहले से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है, आपको पहले अंडर रूट वाला लिख लेना, उसके बाद करना, मैं पहले से करता हूँ, ठीक है। सो एन कैप मॉड का स्क्वायर प्लस मतलब इक्वल टू n1 कैप मॉडुलस का स्क्वायर प्लस n2 कैप मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 n1 n2 कॉस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या लिखा। मैं एक बार फिर से समझा चाहता हूँ, मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले से कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं उस फॉर्मूले में रिजल्टेंट वाले, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। डेरिवेशन जब हम करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही हम अपना काम करते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही हम यहाँ पे काम करते हैं। डायरेक्शन के लिए आपके पास अलग फॉर्मूला होता है, वो बी साइन अल्फ़ा अपॉन ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा, तो वो अलग फॉर्मूला होता है डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है, थीटा बताने के लिए। लेकिन ये क्या है, ये आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड बताता है। सो अंदर भी जो भी होगा वो मैग्नीट्यूड रखेंगे, इसलिए मैंने मॉडुलस लगा दिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मैंने पहले से कर दी। तो ये आ रहा था, ये रिजल्टेंट बन रहा था किनका, इन दो के एडिशन का, ठीक है, लिखा हुआ। चलो अब ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन ही होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, वन का स्क्वायर वन होगा, फिर 2 इंटू वन ये भी वन होगा, तो 2 का 2 रहने दो, कॉस थीटा, ठीक है। सब वन 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 आ जाएंगे और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई यहाँ पे -1/2, ये वन को वहाँ आ जाएंगे -1/2। सो इधर भी क्या आ गया, थीटा इक्वल्स 120 डिग्री, ठीक है, थीटा इक्वल्स 120 डिग्री। लेकिन आपको थीटा नहीं निकालना था, आपको ये निकालना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम आगे क्या कर सकते हैं। ये चीज़ भी आप पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट कीजिए। देखो यहाँ पर भी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है और ये जो इंडिविजुअल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मतलब आप कभी भी यूनिट वेक्टर्स को ऐड करेंगे और आपको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, सो ऑब्वियस सी बात है थीटा 120 डिग्री ही आएगा, ठीक है, ये बात आप याद रखना, ठीक। तो हर वेक्टर के लिए वो रूल अप्लाई होता है कि अगर रिजल्टेंट इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज अपने दोनों वेक्टर से, तो थीटा 120 डिग्री ही आता है। मतलब ये n1 और ये n2 के बीच में जो एंगल होगा वो 120 डिग्री ही होगा। n1 कैप, ठीक है, n1 हैट n1 कैप जो भी है, n2 कैप, और ये जो जा रहा है इनके बीच से ये क्या है, n कैप, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना है हमको कि इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तब जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास थीटा है, हम थीटा से अपना काम चला लेंगे। देखो इसको जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी ना कोई तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ही, हम उसको आर बुला लेते हैं, ठीक है, कोई ना कोई तो रिजल्टेंट आएगा ही, हम उसको आर बुला लेते हैं और फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कैसे लगाएंगे, आर स्क्वायर, ठीक है, मैं फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले से कर रहा हूँ। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू n1 कैप स्क्वायर प्लस n2 कैप स्क्वायर प्लस नहीं हम माइनस आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो -2 n1 कैप मॉडुलस n2 कैप मॉडुलस कॉस फाई कर दो अब, ठीक है, कॉस फाई कर दिया हमने, कॉस थीटा नहीं रहने दिया, या चलो कॉस थीटा भी रहने देते हैं, कोई बात नहीं, थीटा तो सेम ही होगा वैसे, कॉस थीटा, ठीक है।
तब तो हम थीटा अप्लाई करेंगे ना यहाँ पे। सो आर स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है। सो आर स्क्वायर n1 कैप का स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी मॉडुलस 1 होता है यूनिट वेक्टर का, ये भी 1 आ जाएगा, -2 1 2 1 1। अब देखो कॉस थीटा कितना था, -1/2, सो ये आ जाएगा -1/2। सो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट कैंसल्ड। सो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आई होप ये विजिबल है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको मैं, हाँ ठीक। सो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 1 + 1 2, और ये माइनस इंटू माइनस ये भी 1 हो जाएगा, सो +1 3, ठीक है, माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, सो ये 3 हो जाएगा आपका। सो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3, आर स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। सो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, √3। आप सोच रहे होंगे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि मॉडुलस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मॉडुलस ऑफ एनीथिंग कांट बी नेगेटिव, ठीक है, ये मैथ्स में पढ़ाया जाता है, जिन बच्चों को नहीं पता बताया तो मैं, मैथ्स में पढ़ाया जाता है, मॉडुलस ऑफ एनीथिंग कांट बी नेगेटिव। सो आर जो आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, √3, यानी कि अगर 2 यूनिट वेक्टर्स हैं उनका सम एक यूनिट वेक्टर बन रहा है, तो उन 2 यूनिट वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमें क्या देगा, √3, ये क्या देगा, √3 देगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन नहीं पता हमें, कि डायरेक्शन हमें नहीं पता इसकी क्या है, बट हमें ये पता चल गया कि जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो √3, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो चलिए अब आपसे एक अच्छा सा सवाल पूछता हूँ मैं, अपने आप से मैंने बना दिया सवाल। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, पता नहीं कभी आया है कहीं की नहीं आया, बट अच्छा सा क्वेश्चन है। सो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 था आई थिंक ये, या 3 था, डन जो भी है आप देख लेना, आई थिंक ये 4th क्वेश्चन है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4। सो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं आपको एक फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक आपका 3D प्लेन है, ठीक है, यू नो दैट व्हाट इज़ अ 3D प्लेन। दिस इज अ 3D प्लेन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है, ये सब क्लियर है आपको। सो ये आपका एक 3D प्लेन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, अब वो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है, लेट्स से अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल है, ठीक है, पार्टिकल है हाँ स्मॉल है में उसका, ठीक। अब वो क्या कर रहा है, उस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट पार्टिकल, ठीक है, ऑन दैट पार्टिकल ड्यू टू विच इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो चुकी है उसकी, ठीक, वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, अगर हम देखें यू वेक्टर देखते हैं, यू वेक्टर पहले उसका यू वेक्टर क्या था, यू वेक्टर था उसका पहले i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, ये था उसका पहले यूनिट वेक्टर, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर, यस। और फिर उसने क्या कर दिया, आफ्टर सम टाइम t गेन्स सम वेलोसिटी 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड आफ्टर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ठीक है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स में उसने ये वेलोसिटी गेन कर ली। अब हमें क्या बोला है, हमें ये बोला है, वैसे अभी और भी चीज़ें हैं गिवन में, तो एक और चीज़ गिवन में है, डिस्प्लेसमेंट जो उसका पार्टिकल का हुआ है, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट जो उस पार्टिकल का हुआ है वो कुछ ऐसा हुआ है कि लेट्स से 6i कैप प्लस 8j कैप मीटर्स, ठीक है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेट मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब पार्टिकल पहले शायद यहाँ कहीं यहाँ था, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ और यहाँ के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हमें ये दे रहा है, ठीक है, इसके बीच का, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच का। सो ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट भी कह लो आप इसको। उसके बाद आपको फोर्स भी दे रखा है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा था,
है ना। फोर्स का क्या है वेक्टर, फोर्स है आपका 3k कैप, ठीक है। 3k कैप डायरेक्शन में आपका न्यूटन है, 3k कैप डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपको बताना है वर्क डन। आपको क्या बताना है, आपको बताना है वर्क डन। आपको क्या बताना है, आपको बताना है वर्क डन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप देखो तो। मैं अगर आपको बताऊँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा निहायती इजी क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो अभी क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए यहाँ पे, क्या करें, ये तो वेक्टर्स का सवाल ही नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रही है। बट मेरी मानिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर भी दिया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसको देखो, सारा खेल इसी में, ठीक है। सारा का सारा खेल इसी फिगर में दे रखा है, इसी फिगर में छुपा हुआ है। क्या है वो, देखो ये एक 3D प्लेन है। इसका मतलब क्या है, ये जेड एक्सिस देखो आप, तो ये जो हमारा सरफेस है ये तो 2D है। तो इसको थोड़ा इमेजिन करो, ये तो चलो इमेजिन कर लिया आपने, एक्स इधर, वाई इधर, जेड क्या है इस तरफ आ रहा है, ठीक है, आगे की तरफ है, मतलब ऐसे है, ठीक, ऐसे। मैंने पेन ऐसे रख दिया, तो ये कुछ ऐसे है, मतलब जेड इस पूरे प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि जेड क्या है, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब देखो, अब यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। देखो वर्क डन निकालना है, सो वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का भी अब यहाँ थोड़ा काम आएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम आ रही हैं हमारी, अभी बताता हूँ एक एक करके, अनफोल्ड हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक्स से करें तो हम यहाँ एक्स में कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ फॉर्मूला है, ठीक है, आपको पता ही होगा ये। अब देखो फोर्स क्या है, 3k कैप है, ठीक है। 3k कैप का मतलब क्या कि ये इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 3k कैप आगे बढ़ा है, ठीक है। थ्री यूनिट्स आगे बढ़ा है, 3 यूनिट्स इन के कैप डायरेक्शन। के कैप कौन सा होता है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन होती है। सो थ्री के कैप डॉट, ये डॉट का ही साइन लग रहा है वैसे तो, चलो ठीक है, डॉट एक्स वेक्टर क्या है, 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है। इसके साथ इसका क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखना, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी। व्हाट इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इज ए बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ए बी कॉस ऑफ थीटा, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी, एंड कॉस थीटा इज द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा इन विच दे आर इंक्लाइंड, ठीक है। अब देखो ये के का मतलब z, ये आई का मतलब x, ये j का मतलब y, ठीक है, एक्सिस, ठीक। अब ये इन दोनों का जब आप डॉट करोगे, ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, ये वेक्टर, ठीक है, ये एक सिंगल वेक्टर मानो इसको एक सिंगल एंटिटी मानो, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। ये एक्स वाई प्लेन है, ये आपका जेड प्लेन है, तो ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो इसका मतलब जो आपका थीटा है, थीटा कितना आ जाएगा यहाँ, 90 डिग्री आ जाएगा, है ना। थीटा 90 डिग्री आ जाएगा। ये 3k कैप इस डायरेक्शन में है, और ये जो है ये इस डायरेक्शन में कहीं होगा ऐसे। तो ये और ये परपेंडिकुलर हो गए ना, ये ऐसे लगा है, ये ऐसे लगा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गए। परपेंडिकुलर हो गए मतलब थीटा 90 डिग्री आ गया। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो कॉस क्या होता है, 0 होता है, तो मतलब इसका आंसर 0 जूल आएगा। दूसरा वर्क डन क्या होता है, वर्क डन 0 हो जाता है कब, जब थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाता है, 90 डिग्री। सो उस चीज़ से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तीसरी, अगर आप इसका मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट निकालो, सो 3k कैप, देखो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। सो इसका मतलब 3k कैप को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये पूरी चीज़ को 3k कैप डॉट 6i कैप प्लस 3k कैप डॉट 8j कैप। क्या ये आपको क्लियर है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया यहाँ पे, जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर, ये क्या होता है, ए
डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ये लॉ है आपका, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, और हमारा डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी से भी आपका एक्सप्लेन हो जाएगा कैसे, के और आई मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, मैग्नीट्यूड ए और बी 1, कॉस थीटा, थीटा क्या होगा, के आई 90 डिग्री, के जे 90 डिग्री। सो 90 डिग्री आ गया तो 0 प्लस 0 दैट इज 0 जूल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया कि ये कैसे मैंने इस क्वेश्चन को करा। इतनी सारी चीज़ें गिवन थी, किसी का कोई काम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए दो चीज़ें कि जो आपका वर्क डन होता है या आपका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो जब 90 डिग्री पर दोनों वेक्टर्स होते हैं तो आपका आंसर 0 आता है। और एक आपको वर्क डन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए जो कि ऑब्वियसली होगा भी, आप देखना यकीन है। अब चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं इसमें। क्या अब यू और भी दे ही दिया, मैंने टाइम भी दे ही दिया, तो एक्सेलरेशन भी निकाल ही दो। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल लोगे v माइनस यू अपॉन टी। आई होप आप निकाल लोगे कि आपको करना आता ही होगा, तो फिर भी मैं कर देता हूँ। 2 आई कैप माइनस आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। 4 जे कैप माइनस 2 जे कैप क्या हो जाएगा, प्लस 2 जे कैप हो जाएगा। अपॉन में टाइम आता है, टाइम क्या है 2 है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, वेक्टर में आया, ठीक है, वेक्टर में आंसर आया आपका आई कैप अपॉन 2 प्लस 2/2 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जे। ये आपका वेक्टर में आंसर आया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड बताओगे, ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता दूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आपको भी लर्न करना, ठीक है, आप फॉर्मूला ये को रिवाइज करना कि वेक्टर से उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। इस पे मैंने कम से कम 2 लेक्चर्स दिए हैं कि यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये ऐसे, ठीक है। सो ए वेक्टर मैंने निकाला है यहाँ पे, एक्सेलरेशन वेक्टर v माइनस यू, वी है आपका 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप, यू वाला आ जाएगा। सो आपका आंसर ऐसे आएगा। अब आपको क्या बताना है मुझे, इसका मॉडुलस, ठीक है, इसका मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अब मैंने 2 लेक्चर्स लिए भी हैं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट मेरी, जिसमें मैंने यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड के बीच में रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। सो आप मुझे इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताएंगे एक्सेलरेशन वेक्टर की। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, आई कैप अपॉन 2 प्लस जे कैप, ठीक है, इसका आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलो ये 4th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू दी 5th क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल से रिलेटेड है, हालांकि एनसीईआरटी में इसका थोड़ा सा जिक्र है वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, बट इतना आता नहीं है। ये है हाउ टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर द अदर। ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर, और प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन एक तरीके से क्या होता है, परछाई। मैं आपको बताया, तो इस क्वेश्चन में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे, हाउ टू फाइंड प्रोजेक्शन of one vector onto the other। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। फिर हम एक एग्जांपल लेंगे। पहले आप समझ लीजिए प्रोजेक्शन को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सो देखते हैं हम प्रोजेक्शन को फाइंड आउट कैसे करते हैं। लेट्स से देयर आर 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है, सो ये आपका 2 वेक्टर्स हैं, ठीक, ये उनकी टेल है, ये उनका हेड है। ए वेक्टर बी वेक्टर इंक्लाइंड है, ये दोनों वेक्टर एट एंगल थीटा। अब प्रोजेक्शन मैंने जैसे बताया क्या होता है, परछाई। ठीक है, मतलब एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर में क्या परछाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, क्या प्रभाव डाल रहे हैं, तो चलो इसको देखते हैं, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं कैसा करेंगे। एक वेक्टर दूसरे पे क्या प्रभाव डाल रहे हैं, सो देखते हैं इसको। सो ए वेक्टर बी वेक्टर पे जो प्रभाव डालता है उसका आप फॉर्मूला कैसे करेंगे, उसका आप सिंपल सा ऐसे फॉर्मूला करेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। ठीक है, और दूसरी तरफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। ठीक है, और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर उसको आप कैसे लिखते हैं, उसको आप लिखते हैं ए कॉस थीटा बी हैट। ठीक है,
और इसको कैसे लिखते हैं, बी कॉस थीटा ए हैट, ठीक है। ऐसे कैसे कर दिया मैंने ये, देखो ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इधर करेंगे, तो इसको प्रोजेक्ट करेंगे 90 डिग्री बनाएंगे, ये आपका ए वेक्टर का मॉडुलस आ जाएगा। सो इसका अगर आप कॉस थीटा लेंगे, मतलब इसका ये वाली चीज़ लेंगे, ठीक है, इसकी ये वाली लेंथ लेंगे, उसको ही बी वेक्टर के आप न्यूटन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये बी वेक्टर आ जाएगा, तो ये प्रोजेक्शन हो जाएगी उसकी। ऐसी फॉर दिस, ये हो गया आपका प्रोजेक्शन वाली चीज़। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करेंगे खुद से, मैं फिर मिलता हूँ आपको अगले सेशन में। तो ए वेक्टर आपका है क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर आपका क्या है, आई कैप प्लस जे कैप। आपको फाइंड करनी है ये दोनों चीज़ें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इन दो चीज़ों का आंसर, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये एक JEE का क्वेश्चन है, ठीक है, JEE जुलाई 2021 का क्वेश्चन है। सो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए कॉस थीटा का यहाँ पे प्रोजेक्शन, और फिर यहाँ से बी कॉस थीटा जब करेंगे, सो थोड़ा सा यहाँ से बनाएंगे आप 90 डिग्री, और फिर वहाँ से आप ये वाली लेंथ निकालेंगे, ठीक है, बी कॉस थीटा से, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच।